हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का आपका इंग्लिश का पेपर। हम करने वाले किस तरह का आपका सैम्पल पेपर रह सकता है। सो 3 सेक्शन में इसे डिवाइड किया गया। फर्स्ट रीडिंग 15 मार्क्स, तो 3 जो है या फिर आपका जो है रीडिंग स्किल्स दी होंगी, पैराग्राफ दी होंगी जिससे आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। देन राइटिंग एंड ग्रामर का पार्ट है, तो इसमें क्रिएटिव राइटिंग होगी, तो इसमें जो है आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर्स लिखने होंगे। यहाँ आंसर अलग अलग होंगे। ग्रामर का पार्ट है। देन लिटरेचर, जो आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं, जो आपने बुक पढ़ी है, पोएम पढ़ी है, स्टोरी पढ़ी है, उससे रिलेटेड है। सो स्टार्ट करते हैं। Read the given passage carefully. Plastic is everywhere in our modern world. We use it for bottles, bags, toys, and many other things. Plastic is useful because it's cheap to make and last a long time. But this strength is also a big problem for our environment. Unlike things like paper or food scraps, plastic doesn't break down easily in nature. A plastic bottle can take up to 450 years to decompose. This means that almost every piece of plastic ever made still exists somewhere on our planet. Sadly, much of this plastic ends up in our ocean. Marine animals often mistake plastic for food. Sea turtles think plastic bags are jellyfish, and seabirds feed plastic beads to their chicks. This plastic can make animals sick or even cause them to die. Scientists have found plastic in the stomachs of animals living in the deepest part of the ocean. The good news is that we can all help reduce plastic pollution. We can use reusable bags instead of plastic ones, drink from reusable water bottles, and recycle properly. Some countries have been banned certain plastic items. If we all work together, we can protect our beautiful planet from plastic pollution. सो फर्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज द गुड न्यूज़ इज़, तो ये क्या हमें सजेस्ट करता है कि ह्यूमंस कैन टेक एक्शंस, कि हम एक्शंस ले सकते हो, इस चीज़ को कम कर सकते हैं। विच एक्शंस शुड रिस्पॉन्सिबल एनवायरमेंट बिहेवियर, तो कौन सा इसमें कैरिंग अ रीयूजेबल वाटर बॉटल। विच ऑफ दीज बेस्ट समराइज द पैसेज, तो इसमें जो कौन सी चीज़ है जो पूरे पैसेज की एक समरी टाइप में बना देता है। तो क्या है, प्लास्टिक पोल्यूशन जो है डेंजरस है, लेकिन इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वट इज़ द टोन ऑफ द लास्ट पैराग्राफ, तो क्या एनकरेजिंग है, इनक्रेज कर रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी विद अ वर्ड और फ्रेज, जैसे प्लास्टिक बैग जेलीफिश, सी बर्ड्स का क्या था, प्लास्टिक बीड्स। नाउ प्लास्टिक वेस्ट इज अ मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इन मैनी सिटीज and villages. Suppose your school plan to reduce plastic pollution or its campus. Suggest any 2 practical actions जो है वो क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि एक आप कर सकते हैं कि अवॉइड यूजिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक। ठीक है, सिंगल यूज़ जो भी प्लास्टिक है उनको अवॉइड करना, उनको यूज़ नहीं करना है। एंड सेकंड क्या हो सकती है, प्रैक्टिस करना है किस चीज़ का, सेकंड में आप लिखेंगे प्रैक्टिस सेग्रीगेशन, चीज़ों को प्लास्टिक को अलग कर देना है, सेग्रीगेशन एंड रिसाइकलिंग, ताकि उसको रिसाइकिल किया जा सके, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। Now, almost every piece of plastic ever made still exist on earth. तो लगभग जो चीज़ें प्लास्टिक से बनी थी वो भी अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ये चीज़ ट्रू है, अभी भी हैं। प्लास्टिक कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू डिकम्पोज, तो ये भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग न्यूज़पेपर एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Perhaps the most important and useful invention of Thomas Alva Edison was the electric bulb. He worked for nearly 2 years to invent the first electric bulb. He spent about $40,000 to find out the best material for making the filament. He tried many kinds of material for the filament. At last, in 1879, he was able to produce the first electric bulb. 3 years after, many homes in New York has electric lights. Edison worked hard till the very end of his life to make the world a happier place to live in. He improved telegraphy, Bell's telephone, and Remington typewriter. He invented the electric fan, and in 1913 he also produced the first talkie or talking picture, a
And before his death in 1931, this wonderful inventor had produced or improved about 1,000 things. When he died, the electric lights were turned off for a while in many American homes as a mark of respect for the men who had given them those lights. अब क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट, वाई इज द इलेक्ट्रिक बल्ब डिस्क्राइब्ड एज एडिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इन्वेंशन? क्योंकि इसने जो है चेंज कर दिया डेली लाइफ ऑफ पीपल बाय प्रोवाइडिंग लाइट्स. Which quality of addition is best reflected by his work till the very end of his life? तो क्या था? Commitment to improving human lives. The phrase turned off, इसका मतलब क्या है? Switch off. Which of the following sentence is not correct? तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? He invented the electric fan, true है. He produced the first talking picture, ये भी true है. He produced the hearing aid, ये गलत है. Addition developed or improved over 1,000. जो पहले की इन्वेंशन थे उन्होंने उनको भी इम्प्रूव किया था और भी बहुत सारी इन्वेंशन की थी. स्टेट ट्रू और फॉल्स. एडिशन स्पेंट ओनली अ फ्यू मंथ्स डेवलपिंग द इलेक्ट्रिक बल्ब. तो ये फॉल्स, उन्होंने महीने नहीं साल लगे थे. बट लेसन कैन स्टूडेंट लर्न फ्रॉम एडिसन्स लाइफ. तो क्या वो सीख सकते हैं इससे? तो हार्ड वर्क एंड प्रिजर्वेंस लेड टू ग्रेट अचीवमेंट्स. राइटिंग स्किल है, तो यहाँ पर आपके जो है जो भी राइटिंग वाला पार्ट है उसमें आपके अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं. जैसे इमेजिन यू आर सूर्या, एक शो डायरी एंट्री करनी है. आप कोई गेम हार गए हैं एंड हाउ यू एंजॉयड प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे इवन दो यू कुड नॉट स्कोर. तो आपको एक एंट्री करनी है कि आप कोई गेम हार गए हैं तो उसके बाद आपको कैसा फील हुआ, एंड नेक्स्ट डे जब आप बास्केटबॉल खेल रहे थे तो आपको बहुत अच्छा लगा. ताकि आपने स्कोर नहीं किया कुछ भी, लेकिन आपको अच्छा फील हुआ या आपको वो चीज़ एंजॉय की, वो बताना है. या फिर इसकी जगह इन तीनों में से कोई भी एक पैराग्राफ लिखना है. देन यू आर राजू रीना ऑफ क्लास 6 स्टडिंग इन महात्मा गांधी पब्लिक स्कूल कानपुर. तो स्कूल का नाम बता दिया. ड्यू टू सीजन चेंज यू आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर सिंस लास्ट नाइट. डॉक्टर हैड एडवाइज यू टू टेक रेस्ट फॉर 3 days. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर 3 days लीव. तो आपको जो है स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है कि ऐसे ऐसे है. नाउ इसके बाद आप, ये तो हो गया फॉर्मल राइटिंग जो लेटर हो गया, और ये इनफॉर्मल है. आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है कि वो कुछ दिन समर वेकेशन में आपके घर पे आके स्पेंड करे. उसके बाद है चूज द करेक्ट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक्स. माउंट एवरेस्ट इज, तो माउंट एवरेस्ट क्या है? हाइएस्ट है माउंटेन इन द वर्ल्ड. ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द क्लास रिया इज द, रिया क्या है? इंटेलिजेंट है, मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे इंटेलिजेंट है. Fill in the blank with the correct modal verb. You dash not talk loudly in the library. तो you should not, ठीक है. should मतलब आप किसी को एडवाइस देते हैं. C dash solve the puzzle easily. वो जो पजल को बहुत easily सोल्व करते हैं. So C can solve the puzzles easily. Rearrange the following jumble words to make a meaningful sentence. ठीक है. अब सबसे पहले तो इसमें क्या आएगा? You listen केयरफुली, कि तुम जो भी सुन रहे हो वो केयरफुली सुनो. बिफोर स्टार्ट राइटिंग, बिफोर स्टार्ट राइटिंग, जो भी लिख रहे हो उसको पहले ध्यान से सुनो. प्रभात डैश ऑलरेडी डैश हिज होमवर्क बिफोर गोइंग टू द बैडमिंटन मैच. तो फिनिश है. सो प्रभात हैड, ठीक है, उसने अपना काम फिनिश कर लिया. प्रभात हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क. नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन. अब लिटरेचर वाला पार्ट आ गया. अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड विप्ड स्काई. आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर. आई वुड क्लाइम ऑन अ काइट एंड सील अप देयर. सो नेम द पोएम. तो पोएम क्या है यहाँ पर? नेम द पोएम एंड द पोएट. पोएट भी बताना है आपको. तो पोएम थी द काइट्स और डेफन लिस्टर जो है इसके पोएट है. विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन लाइक कलर्ड बर्ड्स. तो वो क्या है? स्माइली. वो जो है एक तरह से उनको कंपेयर किया गया है. वट डज द पोएट कंपेयर द फ्लाइंग काइट्स. फ्लाइंग काइट को किससे कंपेयर किया उसने? बर्ड से. इन द पोएम द स्पीकर डज नॉट विश टू क्लाइम ऑन अ काइट एंड सेल इन द स्काई. सो ये फॉल्स है, वो करना चाहता था. अब इसकी राइम क्या है? तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो क्या क्या दिया है? यहाँ से एयर, एयर के बाद क्या हो गया? फ्लाई, बर्ड्स, स्काई. ठीक है. तो ये ए हो गया. बी, ए बी सी बी. उसके बाद स्मॉल आ गया आपका तो डी हो गया. फिर एयर फिर से आ गया तो ए हो जाएगा. तो इस तरह से चलेगा. ए बी सी डी ए, ए
ABCDE इस तरह से. Now, one day I fluttered from my nest to see what I could find. I said the world was made of leaves. I have been very blind. At length, I flew beyond the tree, quite fit for grown up labors. I don't know how the world is made of, and neither do my neighbors. So, what does the line I fluttered from my nest suggested? तो इसमें क्या बता रहा है कि उसकी जो स्पीकर है उसकी जर्नी शुरू होती है वहाँ से लर्निंग की. द स्पीकर इनिशियली बिलीव द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ लीव्स. व्हाट डज दिस शो? तो इससे क्या बताता है कि लिमिटेड एक्सपीरियंस, उसे सिर्फ अपने आसपास की चीज़ें पता है. वट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड इन द पोएम? तो इसका मतलब क्या है? वेरी ब्लाइंड है कि द स्पीकर कुड नॉट सी प्रॉपरली, द स्पीकर इग्नोर्ड नेचर, द लैक्ड अंडरस्टैंडिंग अर्लियर. पहले जो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उसमें. नेक्स्ट है यहाँ पर रीजनिंग और वो दिया है आपको. द बर्ड्स एडमिट इट डज नॉट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड. नेक्स्ट है बिकॉज इवन आफ्टर एक्सप्लोरिंग बियॉन्ड द ट्री द मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन रिमेन्स अनसोल्ड. तो ये दोनों ही क्या है? ट्रू है. वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है उसकी. फाइंड अ फ्रेज इन द स्टेंजा विच मीन्स एट लास्ट. तो इसका मतलब वहाँ पर स्टेंजा में क्या है? एट लेंथ. ठीक है, एट लेंथ वो जो बोलता है तो मतलब एट लास्ट उसने क्या देखा. उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस. प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अयप्पन, our folk art that we draw on family function and festivals. It is done with white rice, flour paste, or brick red walls colored with geru. It is made on floor or wall of puja rooms and outside the main door of our home. It is an art form made by women in the family. The design are very beautiful and mathematical and are based on our cultural tradition and observation of nature. Next, why are brick red walls colored with geru important for अपन? तो वो क्यों ज़रूरी है? तो वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो क्या करती हैं? एक कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड वहाँ पर बना देती हैं. नेक्स्ट, हु ट्रेडिशनली क्रिएट अयप्पन आर्ट? तो किसने उसे क्रिएट किया था? वुमेन ऑफ द फैमिली, जो औरतें होती हैं घर की. द डिज़ाइन ऑफ द अयप्पन वॉज डिस्क्राइब्ड एज वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल. वट डज दिस सजेस्ट? तो इससे क्या पता चलता है कि उसमें पैटर्न और सिमेट्री फॉलो हो रही हैं. अयप्पन डिज़ाइन आर बेस्ड ऑन कल्चरल ट्रेडिशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ, किस चीज़ का था? नेचर का ऑब्जर्वेशन और ट्रेडिशन देखा गया वहाँ पर. वेयर आउटसाइड द होम इज अयप्पन आर्ट कॉमनली ड्रोन? तो आउटसाइड द मेन डोर. नेक्स्ट, या तो ये ऊपर वाला पैराग्राफ कर सकते हैं या ये वाला. वट वॉज सरप्राइजिंग वॉज डेट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग. What was more surprising was that Prabhat saw Surya playing basketball the next day. Surya was so hopeless at it that he could not score a basket for 10 minutes. Yet he enjoyed playing the game. His happy smile never left his face. So अब क्वेश्चन है, what was Prabhat attitude towards winning and losing? तो वो क्या करता था? उसे बुरा लगता था, हेट करता था वो लूजिंग को, और वो ही गेम खेलता था जिसमें उसे पक्का पता कि वो जीतेगा. Who was a new person who joined Prabhat school? तो कौन था? सूर्या. वट वॉज सूर्याज एटीट्यूड टुवर्ड्स प्लेइंग गेम्स? तो जो है एन्जॉय करता था गेम को, रिगार्डलेस के आउटकम क्या होगा उसे नहीं पता. वट डिड प्रभात लर्न फ्रॉम सूर्याज ऑब्जर्विंग? तो उसने क्या कि गेम को एन्जॉय करना ज़्यादा ज़रूरी है विनिंग एंड लूजिंग से. हाउ डिड प्रभात बिहेवियर चेंज आफ्टर ऑब्जर्विंग सूर्या? तो किस तरह से वो चेंज हो गया? उसने भी शुरू किया एन्जॉय करना गेम को, और जीतना या हारना उसके बारे में छोड़ दिया था. रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल वर्ड्स, इनको अरेंज करना और मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. जैसे ये है, इससे बनेगा मेमोरियल, मेमोरियल पोएम. ठीक है. नेक्स्ट है आई एम प्रिया राजन फ्रॉम, कहाँ से है? उड़ीसा. उसके बाद आता है नेम ऑफ द स्टेट, जैसे चित्रा है, चित्रा कहाँ से थी? केरला. ठीक है. और आर्ट कौन सी थी? कोकोनट शेल क्राफ्ट करते थे, और उससे क्या क्या बनाते थे? शेल और सैंड पेपर. मतलब जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी, शेल और सैंड पेपर, इनकी ज़रूरत है बनाने के लिए. राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द
फॉलोइंग फ्रेज, तो इसमें क्या है, नाइट विंस, तो इसका मतलब क्या है, पर्सोनिफिकेशन किया गया, उसको इंसान की तरह दिखाया गया कि वो जीत गई. फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस. दालचीनी एंड लौंग गिव रिलीफ व्हेन वी हैव, तो क्या होता है, जब टूथ एक होता है, दांत में दर्द होता है, तो इनसे जो हमें क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है. टिल वी कैन कंसल्ट अ डायटिस्ट. उसके बाद क्वेश्चन आंसर से कोई भी 5 आपको यहाँ करने हैं. वाई डू यू थिंक वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइसेस? We should know about the healing property of spices because they provide natural and effective remedies for various health issues and help in maintaining overall well-being. What is the aim of yoga? Yoga aims to achieve the unity of body and mind, thought and action, and harmony between human and nature. Why are the feet of the children aching? The feet of the children are aching because they have been playing and running for a long time. The sun has set and the grass had turned cold. In Dogra, why does wax come out of the small opening? In Dogra metal craft, wax comes out of the small opening because the craft used the lost wax casting method. During the casting process, molten metal is poured into the mold created around a wax model. As the melt solidifies, the wax melts and escapes through the small openings, leaving behind the intricate metal design. What has Bharat always been known for? Bharat has always been known for its rich and diverse cultural heritage, including its traditions, festivals, and languages. The country's unity in diversity is celebrated and strengthened through initiatives like the Ek Bharat Shresth Bharat program. What does the poetess means by games over? The games over signifies the ending of the game. The poetess and her friends were playing. Metaphorically, it signifies the ending of childhood days in the poetess' life. Why was the first state exhibition an important event in Ila's life? The first state exhibition has an important event in Ila's life because it provided her with an opportunity to showcase her unique embroidery skill and gain recognition for her talent. It was a significant milestone that demonstrated her achievement despite her physical challenges and validated her hard work and dedication. Name some common spices that have healing properties. So turmeric, ginger, जीरा, लौंग, मेथी, काली मिर्च, सोप एक्सेट्रा, इस तरह से जो भी आप लिख सकते हैं. देन उसके बाद में इसमें से कोई भी एक आपको करना है. फर्स्ट दिया है, A child in your class feel discouraged because she find writing difficult compared to others. जैसे कि based on Ila Sichani's life, तो आप उसे क्या advice देंगे? I would advise her to focus on her strength and keep trying with determination. Like Ila Sichani, challenges can be overcome with hard work, family support and a positive attitude. और इसी का second part है ये. Art has the power to rise above physical boundaries. Explain this statement using Ila Sichani's example. Ila created beautiful embroidery using her feet despite physical limitation. Her art touched people's hearts and proved that creativity is not limited by the body. या फिर या तो आप ये दोनों पार्ट करेंगे या ये क्वेश्चन करेंगे. Your school plans to celebrate 21st June with meaningful activities. Explain the importance of this day and suggest 2 suitable activities based on the lesson. So 21st June is celebrated as International Yoga Day to promote health and well-being worldwide. Suitable activities include conducting a yoga session for students and teachers and organize awareness talks or demonstration on the benefits of yoga. These activities encourage regular practice and healthy living. So इसके साथ ही आपका सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाता है. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. That's all for today and please like, share and subscribe. Thank you.